So dear students, we are going to talk about narration part 2. As we discussed how we have to change two things in narration. The sentence was, I said to him. In the previous video we talked, that was reporting verb, and in inverted commas we write reported speech. So that was the sentence. We saw how to change it. So that was reported speech. And we saw that two changes been done in both the parts. In that in two things and in that two things. Right? We studied that in the previous video. Right? Now what we are going to do? Change of pronoun तो हमने देखा था इसमें. अब change of tense we have to see. We are going to see change of tenses. क्योंकि इसमें तो दो ही चीज चेंज होती है, that is reporting verb में said to और comma inverted comma. Comma inverted comma को हटाकर we write conjunction और इसको हटाकर said to को told कर देते हैं, said to को ask कर देते हैं, जैसा सेंटेंस का मोड होगा वैसा. So अब हम बात करने जा रहे हैं how to change the tenses, right? That is also very important thing. Pronoun changes हमने देखे son upon 1 to 3, son upon 1 to 3 का रूल हमने अप्लाई किया था. अब हम बात करने जा रहे हैं tenses की, how to change the tenses. तो tense change करने के लिए एक स्टेप याद रखना है आपको, एक फॉर्मूला that is called और की वर्ड याद रखना है, a step back, one step back. ये मेरा बताया एक फॉर्मूला है कि हमें वन स्टेप बैक आना है. वन स्टेप बैक से क्या मतलब है? वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक. मतलब कि अगर हम सपोज वी आर हियर, दैट इज आवर प्रेजेंट टेंस, राइट, एंड दैट इज आवर फ्यूचर. दैट इज फ्यूचर, दैट इज प्रेजेंट. यहां पे है हम प्रेजेंट में, एंड दैट इज आवर पास्ट. ये हमारा पास्ट है. ओके तो अब हम प्रेजेंट से जब पास्ट में आते हैं तो पास्ट दो होते हैं, मेन दो होते हैं, बाकी तो पास्ट सिंपल होता है. दैट इज सिंपल, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, राइट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हम चलते जाएंगे पीछे तो यहां तक पहुंचेंगे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट का लास्ट पार्ट होता है. ठीक है, जैसे शहर का लास्ट पार्ट क्या होता है, जब नदी आ जाती है तो शहर खत्म हो जाता है. इन द सेम वे इन द पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेंस इन द पास्ट. तो प्रेजेंट से अगर हम स्टेप बैक चलेंगे तो सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा सिंपल पास्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इस तरीके से हम प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं. सो एक स्टेप बैक, वन स्टेप बैक इफ वी कीप इन आवर माइंड तो हमसे गलती नहीं होगी कभी. तो अब देखते हैं कि टेंसेस का चेंजेस कैसे करना है, हाउ टू चेंज द टेंसेस. So that is direct and that is indirect. If simple present is given in the reporting verb, क्या दिया हो? Simple present दिया हो reporting verb, reported speech के अंदर. sorry, if simple present is given in reported speech, reported speech जो कि inverted commas के अंदर है, simple present दिया हो यानी कि do या does दिया हो, verb का first form दिया हो, या जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, गो, ईट, ये सब दिया हो. ठीक है, या इज एम आर दिया हो. दैट इज द सिंपल पार्ट ऑफ द टेंस. तो इनको हम चेंज कर देंगे, चेंज इनटू सिंपल पास्ट. सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट. तो डू डज बन जाएगा डिड, कम या गो बन जाएगा, कम का हो जाएगा केम, और गो
कि V2 becomes V1 become V2. This V1 means main verb. Main verb first form becomes main verb second form. Is MR becomes was verb. Is MR को हम किसमें चेंज कर देते हैं? Was या verb. Is MR becomes was verb. Second is present continuous. If the sentence is given in present continuous tense, it becomes past continuous. Present continuous becomes past continuous. Present continuous becomes past continuous. Is MR going becomes was verb going. Is MR going, is MR playing है तो was verb playing, was verb going बताएगा. Was verb going यानी कि was या verb एक चीज according to the subject. Was verb going. Okay. If present perfect is given, suppose present perfect tense is given, then it will be past perfect. Present perfect is given, suppose has or have, third form is given, has have gone, then it will be had gone. That is past perfect. So present perfect becomes past perfect. Present perfect बन जाता है past perfect. तो ये हुए हमारे प्रेजेंट से पास्ट के चेंजेस. एक और रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस becomes past perfect continuous. Okay, so these changes are done from present to past tense. Present to past tense. तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा. सेकंड पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू चेंज द पास्ट टेंस सेंटेंसेस. ये तो प्रेजेंट टेंस वाले जो दिए हैं हम पास्ट में करेंगे. अब पास्ट वाले दिए हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में, तो क्या करना है? एक स्टेप और बैक आएंगे हम, जैसे भी मैं समझा रहा था आपको उस चार्ट से. तो एक स्टेप और बैक आना है और क्या करना है अब देखते हैं. नाउ दैट इज द पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट मींस V2 फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म. So verb second form becomes had plus verb third form. Verb second form means simple past become past perfect. Past perfect में had plus third form का यूज करते हैं. So past simple past becomes past perfect. Simple past क्या बन जाएगा? Past perfect. जैसे कि went लिखा है तो had gone कर देंगे. was were लिखा है तो had been कर देंगे. is MR को was were कर रहे थे. Now was were is given. What we have to do? had been. was were को हम क्या कर देंगे? had been कर देंगे. पास्ट कंटिन्यूअस दिया है, was were going दिया है, तो हम क्या कर देंगे? had been. पास्ट पर was were going दिया है तो हम क्या कर देंगे? had been going कर देंगे. मींस पास्ट कंटिन्यूअस बिकम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस बिकम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस तो चलेगा लेकिन उसको एक स्टेप और बैक ले जाएंगे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस को हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल पास्ट को बदल दिया हमने पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को बदल दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. अब अगले दो आते हैं 3 और 4, जो कि है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिया है तो नो चेंज, यानी कि हैड कम हैड गॉन दिया है तो नो चेंज. जैसे कि मान लीजिए ऐसा दिया हो कि हैड गॉन, पहले से ही हैड गॉन लिखा है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे. नो चेंज. आपको एक बात ध्यान रखनी है और इजी तरीका बता देता हूं. अगर हैड वर्ड दिया है आपका रिपोर्टेड स्पीच में, इफ यू आर गिवन हैड वर्ड, हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या होता है? हैड बीन गोइंग होता है ना. तो हैड बीन गोइंग पहले से ही दे दिया है, हैड बीन कमिंग दे दिया है, हैड लगा हुआ है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है टेंस को. मींस टेंस विल नॉट बी चेंज. प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा अगर हैड वर्ड दिया है. अगर हमें हैड वर्ड दिया है तो हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हैड के बाद और पीछे कोई और बचता ही नहीं है चेंज करने के लिए किसी से.
जैसे ये दो ऊपर के हम चेंज करेंगे बट अगले दो हम चेंज नहीं करेंगे. द थर्ड एंड फोर्थ विल नॉट बी चेंज्ड. पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल नॉट बी चेंज्ड. ये आपको अपने दिमाग में रखना है. ठीक है. अब बात करेंगे फ्यूचर पे, यानी कि अभी हमारे पास्ट टेंस में चेंजेस हो गए. हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है. एक तो एक स्टेप बैक आना है. दूसरा ये कि हमें सिर्फ दो ही टेंस याद करने पड़ते हैं. ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको जरूरत ही नहीं है. आपको सिर्फ ये दो टेंस याद रखने हैं बस. पूरे नरेशन में ओनली वी हैव टू कीप टू टेंसेस इन आवर माइंड व्हाइल चेंजिंग द टेंस. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट को तो आप पास कर ही रहे हैं. सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये तो दिमाग में हमारे बैठा रहता है. द प्रॉब्लम इज दैट दीज टू टेंसेस, ये दो टेंसेस हमें दिक्कत देते हैं. दैट इज सिंपल पास्ट जो कि V2 होता है या डिड होता है या वॉज वर होता है. तो डिड को भी आप हैड बना देंगे. डिड को भी आप क्या बना देंगे? हैड बना देंगे. डिड को भी क्या बना देंगे आप? हैड बना देंगे. ये हैड लिखा थोड़ा छोटा लिखा है, आप समझ लीजिए HAD हैड लिखा है. तो डिड भी हैड बन जाएगा, वॉज वर जो बन जाएगा वो हैड बीन बन जाएगा, वेंट जो है वो हैड गॉन बन जाएगा, वेंट जो है वो हैड गॉन बन जाएगा. तो ये हमारा सिंपल पास्ट था. पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर गोइंग, शी वॉज गोइंग, तो शी हैड बीन गोइंग हो जाएगा. was playing had been playing, were playing had been playing, was were playing had been playing. ये इसमें चेंज हो जाएगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस बिकम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर इज वेरी सिंपल. हमें सिर्फ फ्यूचर में विल को वुड, शैल को शुड, कैन को कुड करना है, नथिंग एल्स. और कुछ करना ही नहीं है. बाकी मेन वर्ब उनका सेम रहता है. मेन वर्ब में चेंजेस नहीं करते हैं हम. जो मेन वर्ब रहेगा वही रहेगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का तो कोई यूज ही नहीं है फ्यूचर में. सेकंड फॉर्म जो वर्ब का है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में यूज होता है, बाकी कहीं नहीं यूज होता. पूरे इंग्लिश में कहीं नहीं यूज होता. तो फ्यूचर में अगर मैं बात करूं सिंपल फ्यूचर की, देयर विल बी 4 टेंसेस. तो सिंपल फ्यूचर का ही टेंस बस चेंज करेंगे तो सारे अपने आप चेंज हो जाएंगे. देखिएगा फ्यूचर में अगर आप टेंस को भी ना डालें ऐसे नहीं, दैट इज विल का चेंज हो जाएगा वुड, यानी कि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है, जैसे विल गो है तो वुड गो हो जाएगा. वुड वेंट नहीं करना है, वुड वेंट नहीं करना है. वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म. हियर द मेन वर्ब विल रिमेन सेम इन फ्यूचर. मेन वर्ब विल रिमेन सेम इन फ्यूचर. शैल का शुड, कैन बिकम कुड, कैन गो कुड गो, कैन गो शैल गो शुड गो, कैन गो कुड गो. कुड वेंट नहीं करना. मे टेक सो माइट टेक, मे टेक माइट टेक, मे का माइट हो जाएगा. वेरी इजी. अब बाकी चेंजेस कैसे करते हैं? नाउ बिकम्स देन. 10 10, अगर 10 वर्ड दिया है 10 बिकम्स सो. हियर बिकम्स देयर, लेकिन देयर बिकम्स हियर नहीं, यानी कि एक बार में चेंजेस इधर हो गए. ये वर्ड दिए हुए हैं तो उनको उठा के ये नहीं कर देना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. हाँ, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करते समय करते हैं, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समय नहीं. जो वर्ड इधर दिए हैं उनको चेंज करके ये करना है. अगर ये वर्ड पहले से दिए हुए हैं, देयर दिया है तो उसको हियर नहीं कर देना. अगर पहले से सो दिया है तो उसको हम 10 नहीं कर देंगे. पहले से देन दिया है तो हम नाउ नहीं कर देंगे उसको. हाँ, ओके. बाकी चेंजेस और कैसे होते हैं? सी, दिस बिकम्स दैट, दिस बिकम्स दैट. दिस क्या बन जाता है? दैट बन जाता है. These becomes those, these becomes those, these बन जाता है those. Today becomes that day, today becomes that day.
टुमारो, टुमारो क्या बन जाता है? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे. Okay, tonight becomes that night, tonight becomes that night. Next week becomes following week, next week becomes the following week. And last week becomes the previous week, the previous week. और the week before भी कह सकते हैं, the week before. So ये हुए हमारे change of tenses, right? अब what we have to do now? Now we have to understand how many kind of sentences are there. Sentence कितने तरीके के होते हैं and how to change the sentences. Sentences को कैसे change करना है according to the rules. तो हर सेंटेंस को चेंज करने का रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो भी सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के लिए. रिपोर्टेड स्पीच में तो यही दोनों रूल चलेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन चलेगा, चेंज ऑफ टेंस चलेगा, चेंज ऑफ प्रोनाउन चलेगा एंड चेंज ऑफ टेंस चलेगा.